अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे 5070 मई जून पेपर 21। क्वेश्चन नंबर 1 है, चूज़ फ्रॉम द फॉलोइंग ऑक्साइड्स टू आंसर द क्वेश्चन। ईच ऑक्साइड मे बी यूज्ड वंस, मोर देन वंस, और नॉट एट ऑल। विच ऑक्साइड इज़ यूज्ड एज अ फूड प्रिजर्वेटिव। तो these are the theoretical questions, so you must know कि फूड प्रिजर्वेटिव क्या है, लाइक बी पार्ट इज़ एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ये क्या है। तो ये तो आपको पता होनी चाहिए, ये थ्योरेटिकल चीज़ें हैं। लाइक पार्ट सी जो है कि दिस इज़ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, राइट। तो फूड प्रिजर्वेटिव इस लिस्ट में से आपको सिलेक्ट करना है। So calcium oxide, carbon monoxide, copper oxide, nitrogen dioxide, silicon and sulfur dioxide is used as a food preservative. Okay, sulfur dioxide, sulfur dioxide. Now, what is an amphoteric oxide? So obviously zinc oxide. Amphoteric oxide means which react with acid or base, both. So these are called amphoteric oxide, right? Now in next part ये पूछ रहा है कि has a molecule that contains only 15 protons, that contains only 15 protons. So let's suppose कैल्शियम ऑक्साइड को चेक करते हैं पहले। तो कैल्शियम ऑक्साइड का प्रोटॉन नंबर इज़ 20 and oxygen is 8. So 20 plus 8 is 28. Wrong. They are asking कि टोटल कितने प्रोटॉन्स होने चाहिए, 15। चेक करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड को। कार्बन इज 6, ऑक्सीजन इज 8। सो 6 प्लस 8 इज़ व्हाट, 14। ये भी गलत हो गया, वो 15 कह रहा है। सो कॉपर ऑक्साइड, कॉपर का तो प्रोटॉन नंबर ज़्यादा होता है, 29 होता है, तो बिल्कुल ही रॉन्ग। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन इज 7 and 2 oxygens, है ना। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज NO2. So 2 oxygen means 1 oxygen is 16, 1 oxygen is 8, so 2 oxygens are 16. So 16 plus 14 is more than 15, again wrong. Nitrogen monoxide, NO, so 1 N and 1 O. So 1 N is 7 and 1 O is 8. So total is 15. So this is your answer. Nitrogen monoxide has 15 protons. Okay. Nitrogen monoxide. Nitrogen is 7. Total 15 protons. Yes, has a high melting point because it has a giant covalent structure. So giant covalent structure किसका होता है भाई? इस जो है वो लिस्ट है, इसमें से आपको सिलेक्ट करना है। सो giant covalent structure silicon dioxide, SiO2, सिलिका। reacts with dilute sulfuric acid to make a blue solution. अच्छा, ब्लू सॉल्यूशन से आप लोगों के माइंड में एक बात क्लिक करनी चाहिए कि ब्लू सॉल्यूशन मीन्स व्हाट। ब्लू सॉल्यूशन मीन्स कॉपर सल्फेट, और कॉपर सल्फेट बनेगा किसी कॉपर कंटेनिंग स्पीशीज से। सो इन दिस लिस्ट यू हैव copper 2 oxide. So when copper 2 oxide reacts with sulfuric acid, so it would form copper sulfate, और copper sulfate का जो कलर होता है वो blue कलर होता है। So the answer is copper 2 oxide. Yes. Now part of the reactivity series is shown. Predict
The names of the products formed when manganese reacts with dilute hydrochloric acid. Okay जी, dilute hydrochloric acid. So hydrochloric acid is what? This is HCl. So they are saying कि name बताना है आपको, name. तो manganese is Mn, right? Manganese is Mn. When Mn reacts with HCl, so this is metal plus acid. When metal reacts with an acid, so it always forms salt and hydrogen gas. So the salt would be manganese chloride and hydrogen gas. So you will write what? Manganese chloride and hydrogen gas. Yes, a sample of manganese carbonate is heated strongly. Construct the equation for this reaction. So ये तो general trend भी होता है ना इसका. When metal carbonates is thermally like broken down, so it form metal oxide and carbon dioxide. So इस question में आपके पास manganese carbonate है ना, MnCO3 है. सो MnCO3 को जब आप लोग हीट करोगे तो आपके पास बनेगा MnO मीन्स मेटल ऑक्साइड एंड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. तो आपके पास सिंपल सा ये बनेगा. इजी क्वेश्चन. नेक्स्ट इज पाउडर्ड मैंगनीज इज एडेड टू aqueous zinc sulfate to form aqueous manganese sulfate. Construct an ionic equation with state symbols for this reaction. अच्छा, पहले मैं एक काम करता हूँ, पहले ना मैं फुल इक्वेशन लिखता हूँ और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि आयोनिक इक्वेशन कैसे बनती है बाय यूजिंग द फुल इक्वेशन. ओके जी. सो मैंगनीज इज एडेड टू जिंक सल्फेट. सो मैंगनीज सॉलिड added to zinc sulfate, ZnSO4 reacts to form what? Manganese sulfate plus hydrogen gas. Manganese sulfate is aqueous. ओके हो गया जी. हाइड्रोजन गैस मैंने रॉन्ग, माई मिस्टेक. मैंगनीज सल्फेट एंड व्हाट? जिंक सॉलिड, राइट. दिस इज एक्वस. जब भी हमें आयोनिक इक्वेशन बनानी होती है तो जितने भी एक्वस वाले होते हैं हम उनको ब्रेक डाउन करते हैं, है ना. दिस इज सिंपल कॉन्सेप्ट. तो अब मैं क्या करूँगा, इनको ब्रेक डाउन करूँगा और सेम चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड. तो कैसे होंगी कैंसिल, ज़रा देखिएगा. Mn प्लस Zn2 प्लस SO4 2 माइनस Mn2 प्लस SO4 2 माइनस प्लस जिंक. सो द थिंग इज कि ये और ये कैंसिल हो जाएंगे. सो द आंसर वुड बी दिस. ये आपके पास फाइनल आंसर होगा. ओके हो गया जी. This is your ionic equation. Simple. Now zinc powder अब reducing agent. इन्होंने आपको प्रायर इन्फॉर्मेशन दे दी कि जिंक पाउडर जो है वो एक रिड्यूसिंग एजेंट है. अच्छा, रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइजेज इटसेल्फ एंड रिड्यूसेस अदर्स. इज एडेड टू एसिडिफाइड aqueous potassium मैंगनेट
डिस्क्राइब द कलर चेंज ड्यूरिंग द रिएक्शन. कलर चेंज क्या होगा? सो यू मस्ट नो द कलर ऑफ पोटासियम मैग्नेट. पोटासियम मैग्नेट इज पर्पल. So when the reaction proceeds, so you will see the color change from purple to colorless. Purple to colorless. Aluminum is extracted by the electrolysis of aluminum oxide dissolved in molten cryolite. Write the electrode equation for the formation of aluminium atoms at the cathode. तो बहुत ही सिंपल, बहुत ही easy. Aluminum is in group 3, always has +3 charge. So when Al3 plus cathode के पास जाएगा, it would gain 3 electrons to form Al. Solid deposit हो जाएगा ना वहाँ जाके. This is aqueous. Okay, this is aqueous. तो ये आपके पास इक्वेशन है किसकी? कैथोड की. फिर वो कह रहा है write the electrode equation for the formation of oxygen molecules at the anode. Oxygen is O2 minus, right? So when O2 minus goes to anode, it loses 2 electrons. It loses 2 electrons to form oxygen O2. To balance this equation, मैं क्या करूँगा? यहाँ पर 2 लगाऊंगा क्योंकि वहाँ पर क्या है? O2 है. जब मैंने यहाँ पर 2 लगाया तो एक ऑक्सीजन अगर was losing 2 electrons, so 2 oxygen would lose 4 electrons. अब मैं क्या करूँगा? 2 को हटाया, यहाँ पर मैंने क्या लगाया? यहाँ पे मैंने क्या लगाया? 4 लगाया. दिस इज योर बैलेंस्ड इक्वेशन. स्टेट वन एडवांटेज ऑफ रिसाइकलिंग एल्यूमिनियम. क्या एडवांटेज हो सकता है भाई रिसाइकलिंग यानी एल्यूमिनियम को रिसाइकल करने का? है जी. अच्छा, अगर यानी आप यूँ कह सकते हो कि अगर आपने एल्यूमिनियम को रिसाइकल करना है तो मीन्स कि आप अपनी एनर्जी को सेव कर रहे हो, वरना तो आपको पूरा प्रोसेस दोबारा से करना पड़ेगा पूरा 100%. तो रिसाइकल का पर्पज़ यही होता है कि हम अपनी एनर्जी को सेव करें, राइट? सो हम लिख सकते हैं यहाँ पर टू सेव एनर्जी. टू सेव एनर्जी ये जो हम एलुमिना को अलग करते हैं, एलुमिनियम को अलग करते हैं फ्रॉम एलुमिना यानी कि Al2O3, तो ये बड़ा लंबा प्रोसेस होता है इसका. माइनिंग करके पहले हम बॉक्साइट सेपरेट करते हैं, फिर उसकी इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं, फिर क्रायोलाइट ऐड करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस से पहले यानी टू लोअर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ बॉक्साइट. तो फिर वो कैथोड, फिर एनोड, फिर हम उसको प्योरीफाई करते हैं. एक लॉन्ग प्रोसीजर है. तो हम उसे रिसाइकल ही इसलिए करते हैं ताकि हमारी एनर्जी क्या हो? सेव हो जाए. ओके जी.